very logical day to all of you, and here we are with the discussion of yet another article from the Indian Express of April 4th. Now, what you have to do is, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम्हें एक बड़ा टॉपिक तो पढ़ना ही चाहिए, पर एडिटोरियल पेज खास रहता है क्योंकि जो कुछ भी important है, the columnists are definitely going to give their opinion about the same, right? So let us see what we have today related to what Trump has said on his Liberation Day. उसने एक इन्वर्टेड कॉमा में लिबरेशन डे की बात की है कि आखिर ये है क्या, ठीक है? So Liberation Day has delivered what is arguably the greatest shock to the global trading system in recent times, with US President Donald Trump unveiling his policy of reciprocal tariffs. अब देखो, लिबरेशन डे उसे बोल दिया, मतलब वो अमेरिका को फ्री कराना चाहते हैं, बढ़िया, पर किससे फ्री कराएंगे वो? उनका जो डिपेंडेंस है ऑन द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन अदर कंट्रीज, अगर वो अमेरिका में आती हैं तो फिर वो उस पर डिपेंड हो जाते हैं. So let us see what he has planned and what he is doing. But now this is just a very short article here, right? Your take should be कि हम ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जाने, पर इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं हम उसे भी समझें, right? So this is just one article. What I am hinting at is that you should be reading some more articles on the same topic, right? So that you are able to understand the complete scenario there. So now he has delivered the greatest shock to the global trading system in recent times with the US president. What is he doing? He is unveiling his पॉलिसी ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ, जो कि 1.5 से रेसिप्रोकल टैरिफ की बात चल रही है. आखिर ये है क्या? अब ये उन्होंने पॉलिसी बनाई. Comparisons are being drawn with the Smoot-Hawley Tariff Act of 1930, and that had been then led to the collapse of global trade. तो 1930 में उसके बाद कोलैप्स हुआ था ये जो टैरिफ एक्ट था, ठीक है? Now Trump has paid neither friend nor foe with countries across the board, from allies like the UK and EU to China and even Madagascar, facing the specter of significantly higher tariffs. ठीक है, तो प्रॉब्लम जो हायर टैरिफ्स की थी वो उन्होंने सबके ऊपर लगा दिए, चाहे वो फो यानी एनिमी, चाहे वो फ्रेंड हो या वो फो हो या वो एलाय हो या कोई भी हो, बड़ा देश हो छोटा देश हो, वो भी कर दिया. इवन मैडागास्कर का मतलब यू कैन अज्यूम दैट, or rather you can conclude that it was not suggested that not suggested but it was not thought of कि एक छोटी कंट्री मैडागास्कर जैसी कंपनी पे भी वो कुछ टैरिफ्स लगाएंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे, पर ऑथर के हिसाब से उस पर भी लगाया. मतलब ऑथर वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यूएस इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है? तो सिर्फ एक वर्ड इवन से भी हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं. फेसिंग द स्पेक्टर ऑफ सिग्निफिकेंटली हायर टैरिफ्स, फॉर नाउ predicting how this ends is beset with difficulties, right? So that means whatever he has said about related to the tariffs on different countries in a different manner, right? But now you can't predict क्योंकि उनका दिमाग कहाँ और कैसे चल रहा है, कितने टैरिफ्स उन्होंने किस कंट्री को कितना लगा दिया, किसका कम किसका ज्यादा, ये सारा जो खेल है, ठीक है? अब इसको प्रिडिक्ट करना कि ठीक है आगे ये किस तरीके से अफेक्ट करेगा ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम पर, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, राइट? Why this is what he's saying, how this is going to end is beset with difficulties. तो बड़ी मुश्किलें अभी हैं सामने. टू सेट्स ऑफ टैरिफ्स, अब ऑथर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ के टैरिफ्स लगे कैसे हैं, ठीक है? तो टू सेट्स ऑफ टैरिफ्स हैव बीन imposed. One, a base tariff of 10% that will be effective from April 5, and another country specific tariff effective from April 9. India has been hit by a reciprocal tariff adjusted of 27%. इतना परसेंट हमें करना पड़ा. एडजस्टेड मतलब हमने लगाया उन्होंने लगाया, ऐसे करके एडजस्ट करके 27% का टैरिफ बढ़ा है या लगाना है इंडिया को. पर it is however less severe than that levied on China. China का 34% है, in addition to existing 20%. 20 plus 34 एक्स्ट्रा हो गया उसके पास. And on others like Vietnam जिसका 46% है, बांग्लादेश 37%, इंडोनेशिया 32% and Thailand 37%. तो ये सारे जो हैं इंडिया के कॉम्पिटिटर्स हैं, और इंडिया का जो ओवरऑल टैरिफ दिख रहा है हमें एडजस्टेड वाला 27% है. ये इन कॉम्पिटिटर्स से कम है. मतलब अमेरिका ने हमारे लिए थोड़ा बहुत तो कुछ इजी किया है,
right? This is what the author is hinting at, that these are India's competitors. So you need to understand from this only why he has mentioned all this data. Even though these countries have lower average import tariffs, Trump's order, however, provides exemptions for certain critical minerals. ठीक है, however करके वो थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते हैं कि ये जो exemptions हैं, ऑर्डर है, ठीक है, इसमें ये मिनरल्स नहीं आएंगे, एनर्जी प्रोडक्ट्स, सेमीकंडक्टर्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. द क्वेश्चन नाउ इज हाउ दीज कंट्रीज विल रिस्पॉन्ड. तो इन चीजों पर इतने टैरिफ्स नहीं है, इन्हें थोड़ा सा आसान कर दिया है. लेकिन अब बात है कि ये कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज इंडिया मिला के, ये कंट्रीज रिस्पॉन्ड कैसे करेंगी ट्रंप के टैरिफ्स पर. विल दे चूज टू रिटालिएट. रिटालिएट यानी बदला लेना, तो क्या वो भी करेंगे? रेसिप्रोकल टैरिफ्स इसी तरीके से लगेंगे, तो क्या वो रिटालिएट करेंगे? अब देखो, रिटालिएट के बाद ये डैश है. चाइना's commerce ministry has said that it will take counter measures to safeguard its own rights and interests. तो चाइना जैसी कंट्री तो कर लेगी, ठीक है. तो दो डैश के बीच में जो चीजें आती है ना, इट इज रिलेटेड टू द प्रीवियसली अकरिंग आइडिया. तो आइडिया क्या था कि क्या ये कंट्रीज रिटेलिएट करेंगी? फिर ऑथर ने एक बात बताई कि देखो, चाइना में इस पर्सन ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि चाइना काउंटर एक्शन लेगा, राइट. इसका मतलब रिटेलिएट वो करेगा, ठीक है. और ऑप्ट नॉट टू, तो या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे रिटेलिएट. अब नहीं करेंगे का एग्जाम्पल उसने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की बात कही. तो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि पैसेजेस कैसे बन रहे हैं, या पैसेजेस लोग लिखते कैसे हैं, आर्टिकल्स लिखते कैसे. तो उसने अपनी एक पॉइंट कह दी, और क्या ट्रंप ने क्या किया है और कितना किया है वो डेटा दे दिया. अब उसने दूसरा पक्ष रखा, क्या कि whether these countries are going to retaliate. Example, China might retaliate, or they are not going to retaliate, so they'll opt out of it. So who? Australian Prime Minister Anthony Albanese said that his government would not impose reciprocal tariffs and perhaps enter into negotiations to lower tariffs. If they do retaliate, will tariffs be the only instrument of choice, or will currencies also play a role? अब यहाँ पे आ गई वापस से ऑथर का एक पॉइंट ऑफ कंसर्न, ठीक है. तो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न था कि whether these countries are going to retaliate, and then he comes up with, if yes then who, and if no then example who. तो no में एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया आया, yes में एग्जाम्पल चाइना आया. इन दोनों की बातों को सुन के अब ऑथर खुद से एक और पॉइंट कहता है कि चलो ठीक है, अब पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि अगर नेगोशिएशंस तक बात आती है तो फिर क्या नेगोशिएशन में वो सिर्फ टैरिफ रेट्स की बात करेंगे, या फिर करेंसीज की भी कोई रोल होगा, उसका भी कोई रोल होगा in the negotiation. This is what again another point of concern given by the author. Now the imposition of tariffs will result in a significant macroeconomic shock. As per a note by JP Morgan, if these policies are sustained, ठीक है, अब वो बोल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक झटका लगेगा अगर इस तरीके से इतने हाई टैरिफ्स लगते हैं तो. फिर वो अपना क्लैरिफिकेशन दे रहा है जेपी मॉर्गन कि देखो, अगर ये पॉलिसीज चलती रहती हैं तो दे कुड पुश द यूएस एंड द ग्लोबल इकोनॉमी इनटू रिसेशन दिस ईयर. क्योंकि इतने हाई टैरिफ्स होंगे तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कुछ तो कम हो जाएंगी, ऑर्डर्स, डील्स कुछ तो कम हो जाएंगे. और अगर ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कम हो जाती हैं तो इस साल के एंड में आते आते रिसेशन दिखेगा. दिस इज व्हाट मॉर्गन इज सेइंग. नाउ ट्रम्प हैज हाउएवर indicated that the duties imposed could be decreased or limited in scope if countries undertake significant steps to address US concerns. मतलब वो धमकी भी दे रहा है एक तरीके से, ठीक है, पुशिंग दी अदर कंट्रीज टू द एज. ये भी कर रहा है कि देखो, मैं इतना टैरिफ लगा रहा हूँ, मैंने ऐलान कर दिया. अब कुछ कंट्रीज होंगी जो कि रिटेलिएट करेंगी, तो चलो हम भी इतना लगा देते, तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स हो जाएगा. और कुछ कंट्रीज होंगी जो कि नेगोशिएट करेंगी. तो ट्रंप ने इतना रूम रखा है, इतनी जगह रखी है, इतनी उसने लीवे, ही हैज गिवन अ लीवे देयर दैट सी इफ यू वांट टू नेगोशिएट देन काइंडली पे अटेंशन टू माय कंसर्न्स. ठीक है, एक तरीके से धमकी है शुगर कोटेड वाली. खैर शुगर कोटेड है नहीं वो. तो इफ कंट्रीज अंडरटेक सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू एड्रेस यूएस कंसर्न्स,
तो ये टैरिफ जो ड्यूटीज हैं जो इम्पोज की गई है ये रिड्यूस हो सकती हैं, राइट। नाउ इंडिया एंड द यूएस आर करेंटली नेगोशिएटिंग अ ट्रेड डील। अब इंडिया और यूएस की बात आ गई, चलो ट्रेड डील है इनके बीच में। इंडिया, if a few days ago India agreed to the terms of reference for the agreement, it has also taken steps in the recent past from cutting the tariffs on high-end cars and high-capacity motorcycles to doing away with the equalization levy। ठीक है, तो दो चीजें इंडिया ने मान ली है। उसने जो हाई एंड कार्स पर टैरिफ अलग से लगाया था उसने उसे कम कर दिया है, और कटिंग टैरिफ बोल दिया उसने कार्स पर, मतलब ज्यादा अमेरिका की कार्स दिखेंगी हमें रोड्स पर। और दूसरा इक्वलाइजेशन लेवी, जो हाई कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स है उस पर भी वो जो कुछ लेवी कर रहे थे, इम्पोज कर रहे थे, उससे मतलब उनमें कोई ना कोई स्टेप्स लेके कम ज्यादा किया है। तो व्हाट इंडिया इज शोइंग इज एन अकोमोडेटिव स्टैंड की ठीक है, हम अमेरिका के प्रोडक्ट्स को भी समझ लेंगे, अकोमोडेट कर लेंगे इस हिसाब से। बट along with negotiating with the Trump administration and pushing ahead with the trade deal, दो चीजें, Delhi must also pursue a more ambitious and broader agenda for trade reform। तो सिर्फ डील साइन करना और उसके लिए ये काम करना और नेगोशिएशन करना, बस इतना नहीं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, दिल्ली मस्ट कम अप विद समथिंग दैट इज फार मोर एम्बिशियस। तो ऐसे नहीं कि हम बस यूएस की बात सुन के उसकी हाँ में हाँ मिला दें, नहीं, हमें अपने हिसाब से भी एम्बिशियस होना है। हमें भी यही चाहिए कि यूएस हमारे बेनिफिट या हमारे कंसर्न्स के हिसाब से भी कुछ काम करे, हमेशा हम यूएस के हिसाब से नहीं चलेंगे। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज हियर, दैट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस और along with all this, Delhi must also pursue a more ambitious and broader agenda for trade reform, right? So the main idea comes here now. This was what Liberation Day has delivered. He has spared neither friend nor foe with countries across the board, means across the world, across the globe. तो जितनी कंट्रीज के साथ उनका रहता है काम, बिजनेस ट्रांसैक्शंस होती हैं, डील्स होती हैं, ट्रेड्स होते हैं, जो रहता है, ठीक है, उनमें मेजर मेजर कंट्रीज और फिर कुछ छोटी कंट्रीज को भी उन्होंने निशाना बनाया है। ये ऑथर का फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। ये वाला मार्क इसलिए क्या है कि ठीक है, यहां से हमें समझ में आएगा कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटिंग है। वन टैरिफ जो उन्होंने कहा था, वन सेट ऑफ टैरिफ किसके ऊपर है, जो अप्रैल 5 से स्टार्ट होगा। सेकेंड सेट ऑफ टैरिफ इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 9, दैट इज व्हाट ही हैज सेड, दैट इज वन इज ऑफ 10% and the other is country specific tariffs, right? So there is a little differentiation in both of these. Then he comes up with saying that, see, less severe than that, whatever India is facing here, ये मैंने समझा दिया था कि इंडिया का अगर 27% है तो यहाँ पर वो लेस सिवियर है बाकी की कंट्रीज के ऊपर जो टैरिफ लगा है उससे, ठीक है। तो ऑथर ये डेटा देता क्यों है, क्योंकि उसके पास एक पॉइंट है कि देखो ये जो इंडिया के कॉम्पिटिटर्स हैं इनके ऊपर जो अमेरिका ने ज्यादा टैरिफ्स लगाए हैं, इम्पोज किए हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स देर इज सम हाउ अ सॉफ्ट कॉर्नर देयर फॉर इंडिया, राइट, बिकॉज यूएस ऑल्सो नीड्स इंडिया, इंडिया ऑल्सो नीड्स यूएस। तो वो नेगोशिएट करेंगे, जो अभी हमने आखिरी के पैराग्राफ में देखा था। तो नेगोशिएट करके वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स करें या ना करें ये बात की बात है, नेगोशिएट करना है, डील क्रैक करना है, ये तो है ही सही, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि देखो बाकी सबका तो काफी हाई है टैरिफ क्योंकि इंडिया के कॉम्पिटिटर्स हैं, फिर भी ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि आर दे गोइंग टू रिटेलिएट, तो चाइना से पॉसिबल, हमारे कंसर्न्स, हमारे राइट्स रहेंगे। फिर क्या वो नहीं करेंगे रिटेलिएट, ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन हम नेगोशिएट करेंगे। तो नेगोशिएशन परहैप्स एंटर इनटू नेगोशिएशंस, ठीक है, ये भी जरूरी है। तो अब नेगोशिएशन अगर करते हैं तो फिर क्या चीज रहेगी नेगोशिएट करने के लिए, विल इट ओनली बी द टैरिफ रेट्स or will it also be the currency? That is what the author is pointing out to. Then this is going to result now the impact of it. तो उन्होंने बता तो दिया टैरिफ्स होगा, कौन क्या करेगा वो। अब उसका इम्पैक्ट ऐसे होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस काफी हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू जेपी मॉर्गन, ठीक है। अब ट्रंप ने क्या कहा कि देखो मैंने तो लगा दी हैं टैरिफ्स, अब काम है तुम्हारा, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। तो अब क्या करोगे, अगर आप रिटेलिएट करते हो, रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाते हो, तो ठीक है, फिर जंग होगी, देखते हैं हम,
ठीक है, अगर नहीं तो देयर इज इनफ स्पेस, इनफ रूम if countries want to negotiate that, right? So if they want to undertake significant steps to address US concerns, negotiate करोगे तो आप US के जो concerns है उस पे हमारा ध्यान जरूर रखोगे, तो हम देखेंगे कि क्या डील है और फिर साइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दिया इंडिया ने कि इंडिया ने कुछ स्टेप्स कैसे लिए और किस बारे में लिए। जब ऑथर ने ये बता दिया, फिर ऑथर अपनी बात पे आया कि इंडिया को सिर्फ यूएस की बात ऐसे ही सबमिसिवली नहीं मान लेनी चाहिए, तो दिल्ली को, दिल्ली वुड स्टैंड फॉर द कंट्री दैट इज, तो दिल्ली मस्ट टेक समथिंग दैट इज मोर एम्बिशियस नाउ, राइट? तो दिल्ली को भी अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए ट्रेड डील में, ऐसे नहीं कि सिर्फ नेगोशिएट करे। Along with negotiation, it should come up or pursue a more ambitious and a broader agenda apart from that deal only. तो ट्रेड रिफॉर्म होना चाहिए, तो बड़ा सोचना चाहिए दिल्ली को भी, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, ठीक है। तो अब हम अगर इसको करते हैं ट्रम्प्स टैरिफ्स, वर्ल्ड ट्रेड एंड इंडियाज ऑप्शंस, तो कौन क्या क्या कर सकता है, ये हेडिंग जैसा हो जाता है। इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स विल रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट मैक्रो इकोनॉमिक शॉक, ठीक है, ये उसने एक बोला था। और इससे पता चल जाता है इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स है और उसकी बात, उसका रिजल्ट, उसका इम्पैक्ट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक शॉक। इंडिया मस्ट नेगोशिएट विद द यूएस, परस्यू अ मोर एम्बिशियस एजेंडा फॉर ट्रेड रिफॉर्म। तो उसे नेगोशिएट करना चाहिए, रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, दिस इज द ऑथर से, एंड इट शुड कम अप विद अ स्ट्रॉन्गर, मोर एम्बिशियस ट्रेड रिफॉर्म प्रोग्राम। This is what we could understand from those 3 paragraphs there, right? ना अगेन वोकैबलरी यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं थी, पर जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं पढ़ना तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और बाकी लोग फ्रेजेस पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। सो अनवेलिंग, अनवेलिंग ऑफ द स्टैचू होता है कई बार उस पे क्रॉस रोड्स पे, चौराहे पे जो स्क्वेयर्स होते हैं वहां पे किसी का पुतला लगाया जाता है। अब उसका जब दैट ओकेजन, दैट इवेंट इज कॉल्ड द अनवेलिंग ऑफ द स्टैचू, ठीक है। और अगर आधा स्टैचू होता है, इतना सा होता है, तो उसे बस्ट कहते हैं। तो अनवेलिंग होता है किसी के भी स्टैचू का। यहां पर उसने क्या कहा, अपनी पॉलिसी के ऊपर से पर्दा हटाया। तो अनवेलिंग का मतलब होता है पर्दा, क्योंकि वेल, पर्दा हटाना, क्योंकि वेल का मतलब होता है पर्दा, राइट। तो अनवेलिंग हिज पॉलिसी, तो दैट मीन्स लिबरेशन डे की पॉलिसी जो है वो लोगों के सामने उन्होंने रखी, ठीक है। स्पेड का मतलब होता है छोड़ देना, राइट। ऐसे एक कहावत होती है कि स्पेयर द स्टिक एंड स्पॉइल द चाइल्ड। तो आपने अगर वक्त पे बच्चों को नहीं सीधा किया तो वो बच्चे बिगड़ जाते हैं, दैट वॉज कॉल्ड अर्लियर, अभी तो वी कैन से। तो स्पेयर द स्टिक एंड स्पॉइल द चाइल्ड, दैट वॉज सेड। सो स्पेयरिंग मीन्स किसी को भी नहीं छोड़ना, ये हो जाता है। तो दे डिड नॉट स्पेयर नीदर फ्रेंड नॉर फो। तो फो मीन्स एनिमी, एंड फ्रेंड के लिए बेटर वर्ड आपको आता है, दैट इज एलाई, ठीक है। नाउ फेसिंग द स्पेक्टर, स्पेक्टर इज समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट, ठीक है। बिसेट विद डिफिकल्टीज, तो बिसेट इज फ्रॉट, फुल ऑफ, ठीक है। नाउ दीज टू आर द फ्रेजल वर्ब्स, इफेक्टिव फ्रॉम एंड हिट बाय अ रेसिप्रोकल। तो इंडिया हैज बीन हिट बाय अ स्टॉर्म, ऐसा नहीं, बाय अ रेसिप्रोकल टैरिफ ऑफ 27%। तो हिट बाय समथिंग, दैट इज द फ्रेज, एंड इफेक्टिव फ्रॉम सम टाइम, दैट इज द फ्रेज, ठीक है। Now here the phrasal verb is provides something for something. तो provide for something, provide with something, right? तो provide for आ जाता है, तो provide exemptions for certain critical minerals. Retaliate का मतलब होता है to take revenge, वो retaliation होता है। अब यहां पे मैंने ये मार्क क्यों किया, एंटर इनटू नेगोशिएशंस, क्यों, समझो थोड़ा सा ध्यान से। Usually what happens when we study prepositions, I will tell you कि enter will not take the word into. He entered into the room गलत है, but enter into के बाद आप लगा सकते हैं word pact, treaty, agreement,
नेगोशिएशन ये दिया है, right? So you enter into a pact, you enter into a treaty, you enter into an agreement or enter into negotiations, right? So in this case, enter into is correct. Otherwise, enter into the room, enter into the stadium, enter into the hall is incorrect. राइट, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. तो जब हम बोलते हैं, जब कई लोगों को ग्रामर पसंद नहीं आता है, पर छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम एक नगेट्स जैसे समझ सकते हैं कि एंटर के बाद इनटू की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एंटर का मीनिंग ही होता है टू कम इनटू. सो ही एंटर्ड द रूम, सो ही केम इनटू द रूम, दैट इज व्हाट इट इज सेड, राइट? सो नाउ आई डोंट नीड द वर्ड इनटू अगेन, एंटर इनटू इनटू जरूरत ही नहीं है, रिडंडेंसी हो जाती है. पर यहाँ पे एंटर इनटू a controversy, sorry, enter into a negotiation is better than, right? That is correct. Now again, push, yahan se hai push, push something into recession. ठीक है, अब देखो, push somebody into the pond, ऐसा भी होता है. तो push के बाद into आ जाएगा, तो push something into something. Now agree to easy word है, क्योंकि agree with भी हो सकता है. ठीक है, तो ये भी एक फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, जैसे एग्री टू एंड एग्री विथ. रेफरेंस फॉर, ठीक है, रेफरेंस फॉर समथिंग बट रेफरेंस टू समवन, राइट? ऐसे भी हो सकता है. तो यू नीड इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द एग्रीमेंट, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स. जो लोग अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो समझेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वर्ब प्लस प्रेपोजिशन. ये होता है वर्ब प्लस अ प्रेपोजिशन. ठीक है, ये एक सेट ऑफ 2 वर्ड्स या सेट ऑफ 3 वर्ड्स बन जाता है. तो वो हजारों होते हैं लैंग्वेज में. तो जितना हम रीडिंग करेंगे उतना धीरे धीरे हमें ये वर्ड समझ में आने लगेंगे. चलो, more to read में I am giving you only 2 articles today from the Hindu. Understand, the other space race, the geopolitics of satellite net. ठीक है, एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, आप इसे पढ़ लेना, काफी इंटरेस्टिंग है आर्टिकल. और शुड इंडिया रिड्यूस टैरिफ्स गिवन द यूएसएस मूव्स. ठीक है, नाउ दिस इज कनेक्टेड टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो एज आई सजेस्ट दैट यू शुड रीड अ फ्यू मोर आर्टिकल्स. सो हमने जो डिस्कस किया वो इंडियन एक्सप्रेस का था, ये वाला जो आर्टिकल है वो द हिंदू का है. ठीक है, तो आप ये भी पढ़ लेना, तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इस टॉपिक के बारे में, तो दैट विल बी गुड फॉर यू, राइट? And that's all for today. So thank you, and stay logical and stay positive, and see you soon.